Hi guys, welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I'm here again with my new video. And guys, today's video was a requested video by one of my subscriber. And before I thought that I'll not make such kind of video, but you suggested me to make this video, so yes, I'm here with the video. And actually guys, now I felt like that this video is gonna be very helpful to all of you. So please watch the video till the end. If you are in low class, higher class, this video is gonna be very helpful to you all, which is about note making. And yes, now let's get started with today's video. Now I'll tell you the materials which I use for making my notes. So firstly I'll tell you that please don't think like that we want too much stationery items for notes or too much expensive and different kinds of stationeries. No, that's not true. So you just need your simple notebook, some of the stationeries, that's all. So firstly I'm showing you the notebooks, and I'll show you different kinds of notebooks which you can use for making notes. So these are A4 size registered notebooks, and these are super helpful and they are very good for the whole year. But I don't use such kind of notebooks. Yes, I use such kinds of small ones, and I think these are of A5 notebooks, I think so. So these are very perfect for me for the whole year, because I can make my notes for the whole year very easily in it, and I can carry it anywhere, actually, in my school bag, in my tuition bag, or at home, anywhere which I want. And yeah, I use such kind of notebooks. But there's another option too, and it's a very good option. I just love it, but I don't do it actually now. I'll do it in the end of the year. So these are A4 size papers, or you can use punch papers or these kind of project papers for your notes, and you can staple them together after making your notes. So yeah, it's a very good option. And here are the stationery items, and these are all optional ones. I am showing you which I use and which I have at my home. You can use which you have at your home and which you like to use. So these are sticky notes, some highlighters, and actually sticky note is very helpful in making notes. You can write some important points in it, and you can stick it on your paper. And these are color pens, and these are very helpful for writing the topics actually. So the topics are actually enhanced and they are very looking good. Your notes are enhanced by writing with such colored pens. So I use these cello colored pens of 5 set, and then comes the main blue and black pens. So in black color I use the Flair Zap gel pens. And yes, I use gel pens because by using gel pens your writing is maintained and your notes are also maintained by it. So I like using gel pens. And the blue one was of Elcos. Then we have scale and pencil. So yeah. एंड नाउ आई टेल यू माई नोट्स मेकिंग स्टाइल एंड टिप्स, मतलब कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, मेरा क्या तरीका है बनाने का, और जो मैं कुछ टिप्स यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव बनते हैं, टाइम कम लगता है और आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। तो इधर मैं लिया है मैंने बायोलॉजी का चैप्टर, क्योंकि आई थिंक बायोलॉजी का सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा आपको दिखाने के लिए कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्योंकि उसके चैप्टर्स बहुत ही थ्योरेटिकल होते हैं, राइट। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो कंसेप्ट होगा, जो चैप्टर होगा पूरा, वो क्लियर होना चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि नोट्स आपको खुद से बनाने होते हैं, खुद के वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब मेरा स्कूल में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं उसे रीड करके रिवाइज़ करके जब मुझे समझ आ जाता है पूरा, फिर मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। और अभी भी आप देख सकते हो कि मैंने स्टिल फिर से रीड किया है, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि मैं लिख क्या रही हूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं इस टॉपिक में, ये चीज़ें हैं, क्योंकि एकदम रट नहीं जाता है ना, तो मुझे एक बार रीड तो करना पड़ता है। तो फिर इसी तरीके से पहले मैंने रीड कर लिया, अब मैं नोट्स बनाऊंगी। तो नोट्स बनाने का एक और टिप मैं बता रही हूँ। वैसे टिप्स तो पूरे वीडियो में ही मिलेंगे आपको, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतने हेल्पफुल वीडियो जल्दी बनाती नहीं हूँ, और जब मैंने बनाया है तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करना, है ना। तो अभी ये जो मैं हेडिंग्स वगैरह लिख रही हूँ, ये मैं हाइलाइटर से लिख रही हूँ। और मैं क्या
करती हूँ ना कि जैसे कि जो आपके कलर पेन्स हैं, ब्रश पेन्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें से आप क्या करो, कोई भी एक सेपरेट कलर आप यूज़ कर लो, मतलब चूज़ कर लो तो जैसे कि मैंने ब्लू चूज़ किया है, तो आप कोई भी अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लो, जैसे पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज, येलो, जो भी आपका मन हो। तो आप उसे चूज़ करके हर एक सेट से, मतलब कलर पेन से ब्लू, ब्रश पेन से ब्लू, इस तरीके से आप यूज़ कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा सोचने में कि आप कौन कौन सा पेन्स यूज़ करो, आप कौन सा नेक्स्ट कलर पेन यूज़ करो। और पूरा आपका चैप्टर समझ लो, जैसे मैंने ब्लू यूज़ किया तो मैंने पूरा चैप्टर ब्लू वगैरह में अच्छे से बन जाएगा और टाइम नहीं वेस्ट होगा और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इधर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं अभी सेल्स के बारे में लिख रही हूँ। और जो बेस्ट मुझे लगता है ना, वो है कंसेप्ट को समझ के, जो थ्योरी वाला पैराग्राफ भी होता है ना, उसे भी समझ के आप उसको पॉइंट्स में लिखो। इतना इफ़ेक्टिव होता है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हाँ अब ऐसा है, अब ऐसा है। लर्न करने में पॉइंट वाइज बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही सही रहता है। तो मुझे तो ये मतलब बेस्ट लगता है पॉइंट वाइज लिखना। बाकी आगे आपको और भी तरीके दिखेंगे कि कैसे कैसे आप अपने डिफरेंट टॉपिक्स को समझ के लिख सकते हो। सो यस, इधर मैंने टाइप्स लिखे हैं यूनिसेलुलर वगैरह के, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस तो आते रहते हैं, तो डेफिनेशंस के साथ उनके एग्जांपल्स भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा है। और फिर आते हैं हमारे स्टिकी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्टिकी नोट्स को मैंने पीछे यूज़ किया है और आप देख सकते हो थोड़ा सा मिसप्रिंट भी आ गया है कॉपी में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कॉपी यूज़ किया है, तो आई डिडंट नो ऐसा कुछ होगा, पर कोई बात नहीं। तो मैंने ये स्टिकी नोट यूज़ किया है और स्टिकी नोट्स बहुत ही सही रहते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो, कुछ भी एक्स्ट्रा आपका डेफिनेशन ही कोई छूट गया हो और उसमें आप लिख लो, बहुत ही सही रहता है। और जो स्टिकी नोट्स का ये नियॉन वाला कलर होता है ना, मैं तो कहूँगी आप ज़्यादातर यही यूज़ किया करो, क्योंकि ये आप देख सकते हो आपको पूरा अलग से दिख रहा है, वो पूरा बॉक्स आपको अलग से दिखेगा। तो जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, आप उसमें वो लिख दो, बहुत सही रहता है, क्योंकि उस बॉक्स में आपको नियॉन कलर में अलग से वो सारे पॉइंट्स दिखेंगे। पूरा नोट्स आप देख लोगे, वो अलग से दिखेगा। तो ये मुझे तरीका बहुत सही लगता है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं उसी में लिख लेती हूँ। और इधर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल लिख रही हूँ। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के। तो ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, बट नो, दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत सही रहते हैं। चैप्टर के एंड में भी कुछ माइंड मैप्स वगैरह दिए रहते हैं, तो वो तो पूरे चैप्टर का होता है। ये मैं फ़्लो चार्ट बना रही हूँ। ये इतना आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है, देखने में बहुत सही लग रहा है, समझने में भी ईजी रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट पता चल रहा है। ज़रूरी नहीं है आप फ़्लो चार्ट तभी बनाओ जब आपको टाइप्स मेंशन करने हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके नोट्स हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और अभी एक और तरीका है अपना कोई भी टॉपिक समझने का। जैसे ये हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, उनको समझना मतलब पूरा आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, मतलब पूरा डायग्राम लर्न होना चाहिए। तो डायग्राम ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब आप उसके क्वेश्चंस वगैरह आंसर कर पाओगे। तो मैंने क्या किया है, मैं पहले डायग्राम बना लिया, मैंने क्लियर लेबल्ड न्यूक्लियस का सारे मैंने पार्ट्स अच्छे से कलर्ड पेन से मेंशन कर लिए, लेबल कर लिए। और अब मैं क्या करूँगी कि उसी जगह पर मैं उन पार्ट्स के बारे में लिख लूँगी शॉर्ट में। जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमैटिन नेटवर्क वगैरह वगैरह। और साथ ही में आप देख सकते हो इधर मैं सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में लिख रही हूँ। जो भी उसका डेफिनेशन मेंशन होता है बुक में, उसको आप अपने तरीके से अपने ईजियर वे में लिख लो। तो ये बहुत ही ईजी रहता है ये तरीका, और दिखने में आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा, बहुत सही रहता है। तो आई जस्ट लव दिस वे, मुझे बहुत ही ये आइडिया अच्छा लगता है। तो या
और सबका नोट्स बनाने का जो इंटेंशन होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा है कि अगर मुझे कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है, मेरा उस चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं जैसे इस नोट्स को पढूँ, रिवाइज़ करूँ, तो मेरा जो मेन एटलीस्ट जो मेन टॉपिक्स हैं वो मेरे क्लियर हो जाएँ, मुझे प्रिपेयर हो जाए। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो तो मैं बुक में अंडरलाइन कर लेती हूँ। मैं सारे छोटे मोटे पॉइंट्स सब नहीं लिखती हूँ, वरना गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो मेन टॉपिक्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उन्हीं को मैं लिखती हूँ। मेरा ये इंटेंशन है। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो नोट्स बनाते टाइम जो की पॉइंट्स होते हैं वो लिख लेते हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे या रिवीजन के टाइम पे वो उन की पॉइंट्स को पढ़ के उसे अपने माइंड में रिकलेक्ट करके वो डेफिनेशन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब लोग का होता है। तो मैं भी आपको कहूँगी कि आप अपना तरीका फ़ॉलो करो, आइडियाज़ लो, ज़रूर लो, लेकिन तरीका, स्टाइल जो भी है आप अपना फ़ॉलो करो। और मैंने इस वीडियो में जो भी बताया ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मैं सही बताई हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। मैं भी नोट्स बनाते बनाते मैंने ये सब सीखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो आई विल नॉट टेल यू टू ब्लाइंडली फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स, नो इट्स नॉट ट्रू। आप अपना तरीका देखो, आपको मेरे वर्ड्स में जो सही लगे, जो टिप सही लगे वो आप फॉलो करो, सब मत करो। जो आपको सही लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे वही आप फॉलो करो। और कमेंट बॉक्स में आप अपने भी तरीका बता सकते हो, कुछ टिप्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो। तो इधर मैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में लिख रही हूँ, और सेल ऑर्गेनल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो नहीं आते हैं। फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख रही हूँ। सो या आई थिंक दिस इज़ गोना बी हेल्प। सो गाइस, जैसे ही मेरा चैप्टर का नोट्स बनाना फिनिश हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस होते हैं उन्हें मैं ज़रूर सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे क्या होता है ना कि पूरा चैप्टर वैसे ही एक काइंड ऑफ प्रिपेयर हो जाता है और फिर उसको करने से और प्रिपेयर हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसे भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो बहुत ही सही रहता है। एंड येस, दिस वॉज माई नोट्स टेकिंग वे एंड आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी थोड़ी सी भी, so please don't forget to like, subscribe, share and comment. And yes, I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.